So, good morning to all. And today, a very important topic, that is the Laplace transform. And last classes, we have different discussed in a two-port network of series, parallel, or different like interconnections of networks. Also, the pi equivalent, t equivalent. So already all things are completed in the two-port network. Okay, and also the numerical problems are discussed. So many numerical problems, and those who are absent, then just watch YouTube channel. All video are available in the YouTube. So now, okay, the today is very important topic, that is the Laplace transform. So I think that in the engineering mathematics, I think these topics, I think this is syllabus in engineering mathematics, this topic is also there. But here actually for the network analysis, the Laplace transform basically for the Laplace transform is basically for the electrical network. And all of you know the Laplace transform. What is Laplace transform? Basic. Akash, this topic has covered in your mathematics or not? ये topic हुआ है mathematics में? Laplace transform हुआ है क्या? Laplace transform हुआ है? Okay. Okay. तो ठीक है, Laplace transform का बेसिक हम बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमको तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना है. तो Laplace transform का बेसिक से स्टार्ट करेंगे. एंड नाउ फॉर द वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्म कैसे हम लोग करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस सर्किट के लिए आरसी आरएल में कैसे हम लोग रिस्पांस को, टाइम कांस्टेंट जो भी है सारी चीज को हम लोग Laplace ट्रांसफॉर्म से कैसे निकालेंगे. एंड अगेन द पोल जीरो कॉन्सेप्ट जो है, पोल जीरो का कॉन्सेप्ट Laplace ट्रांसफॉर्म में हम लोग समझेंगे. तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में बेसिकली Laplace transform बोल सकते हैं कि is also very powerful tools for the network analysis. सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि Laplace transform is also a very powerful tools for the network analysis. Okay, because suppose any linear circuit elements can be solved by the knowledge of what? Laplace transformation. So in this topic, in this chapter, we will discuss about the Laplace transformation, and also this theorem, this transformation is applied for different method and transient behavior of electric circuit. Okay, so all of you know the basic of Laplace transforms. Okay, but today we will discuss the basic as well as some relation with the network theorem, network analysis. Okay. Now let's start the class, that is the Laplace transform, the basic Laplace transform and its application. Laplace transform and its application. So the topic Laplace transform. So I think all of you know the definition. What is the definitions of the Laplace transform? Suppose any time variant functions, f of t, time variant functions. Okay, then what is the Laplace transform of this f of t? What is the Laplace transform of this f of t? Suppose that let f of t be a function of time. And what is the Laplace transform of f of t? So Laplace transform को एक्चुअली हम लोग नोट करेंगे, जैसे कि हम लोग Laplace transform के लिए L ऑपरेटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, Laplace ऑपरेटर जिसको कहते हैं, कैपिटल L या सिंपल L हम लोग बात कर सकते हैं, L. So ये जो L of ft, सिंपल L of f of t means Laplace transform of this is equal to S domain, function of S domain is equal to, that is frequency domain, 0 to infinity. This is the definition. 0 to infinity f of t, and now t minus st, and now this is dt. So this is what? This is the Laplace transform. This is the L is what? L is the Laplace operator. This is called operator, Laplace operator. Okay. So S is the complex frequency here. S, what is S? What is the S? So S is here complex frequency, okay, and you know that unit for it, units is hertz. Now what is this? This is the actually combination of sigma plus j omega. So what is sigma here?
What is sigma here? So sigma, I think all of you know that this is the real part. This is the real part of S. S. Okay. So this is known as Napier frequency. This is what? This is the Napier frequency. What is omega here? This is the imaginary part of S. Imaginary part of S. This is the radian. This is the radian frequency. Okay. So this is the basic definitions of the Laplace transformation. Simple. 0 to infinity f of t e minus t dt. Basic, simple, basic. Now, so many theorems are also in the Laplace transform. So many theorems are also in the Laplace transform. So I think that all of you familiar with the theorems like a linearity theorem, scaling theorems, time differentiation theorem, also what frequency differentiation theorem, time integration theorem, shifting theorem. So now I am discuss one by one. So okay, just wait 1 minute. I am taking a screenshot. So okay, now the theorems. So basic theorems of the Laplace transformation. Basic theorem of Laplace transform. बेसिक थ्योरम्स ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म. जैसे कि लिनियरिटी थ्योरम का यदि हम लोग बात करते हैं, पहला थ्योरम यदि हम लोग बात करते हैं लिनियरिटी थ्योरम. सो लिनियरिटी थ्योरम का मतलब क्या समझते हैं? मान लेते हैं कि हम लोग का फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है, एफ ऑफ 1t, एफ ऑफ 2t, एफ ऑफ 3t. ठीक ना. अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिंपल सा एक थ्योरम, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम लोग इसको नेटवर्क के फॉर्म में पढ़ेंगे. हम लोग नेटवर्क एनालिसिस करेंगे बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म से. जैसे कि k1 एफ ऑफ 1t एक फंक्शन है, k2 एफ ऑफ 2t ये फंक्शन है. तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लिख सकते हैं कि k1 f1s प्लस k2 f2s. जो भी कम लोग कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है. जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोग क्या होता है, कांस्टेंट बाहर हो जाती है. सिमिलरली यहाँ पर भी k1 k2 कांस्टेंट है तो हम लोग उसका कोई भी हम लोग कांस्टेंट का यहाँ पर लैपलेस नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी. नेक्स्ट हम लोग यदि बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम यदि हम लोग बात करते हैं तो वो है सेकंड नंबर, दैट इज स्केलिंग थ्योरम. डिटेल डेरिवेशन ये सब जो है कि तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला पे विशेष हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग का नेटवर्क में कैसे एप्लीकेबल करना है उसको हम लोग कोशिश करेंगे. तो स्केलिंग थ्योरम, व्हाट इज दिस इज स्केलिंग थ्योरम. इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग थ्योरम का मतलब क्या है, जैसे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के टी, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल 1/k. फंक्शन के अंदर में के है, ध्यान देना इस चीज, 1/k एफ s/k इज कांस्टेंट. ये क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट. थर्ड नंबर, टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम. टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम. तो यहाँ पर क्या होगा टाइम डिफरेंशिएशन में, सपोज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन df of t by dt s f s minus f 0 minus. 0 minus means here the lower limit. Okay, 0 minus means here this is the हम लोग जैसे इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेते हैं ना,
तो ये जो जीरो माइनस मतलब ये चीज है, लोअर लिमिट, दिस इज वन, जीरो माइनस। तो दिस इज टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम। एक्चुअली हम लोगों को अभी ये सब सारा यूज होगा, जैसे कि हम लोग अभी इंडक्टर का बात करेंगे, तो इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, है ना, एल डी आई बाई डी टी। उसको लैप्लेस करना रहेगा तो यहाँ पर टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम आना चाहिए। तो देखना अभी एक एक चीज का यूज होगा, एक एक चीज का यूज होगा, इसीलिए फॉर्मूला को अभी जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट वे में बता दे रहा हूँ। नाउ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन थ्योरम। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन थ्योरम। So, frequency differentiation theorem, L TFT minus D Fs by ds. Okay. 5. Time integration theorem. Time integration theorem. So what is this? This is 0 to t. ये सारे चीज का देखना अभी यूज होगा हम लोग जब नेटवर्क में बात करेंगे, कोई भी सर्किट में जब हम लोग बात करेंगे ना, सारा चीज में हम लोग अभी सब यूज होगा। Fs by s, Fs by s, ओके। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सिंपल सा स्केलिंग थ्योरम। अभी शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में भी समझते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट। मैथमेटिक्स में भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़े हो, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में क्या क्या पढ़े हो तुम बता सकते हो? कोई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला सब पढ़े हो? cos ओमेगा टी, कोसाइन फंक्शन का व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन? एनीवन? व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन? क्या होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन? ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। प्रीति, प्रीति आवाज आ रही है प्रीति? Yes, So what is the Laplace transform of unit ramp function? Unit ramp function. What is the Laplace transform of a unit ramp function? Anyone? Sir, 1 by s. Wrong. 1 by s, sir. 1 by s, wrong. वन बाई एस स्क्वायर यूनिट स्टेप फंक्शन का 1 बाई एस होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में तुम लोग जो है कि बस हमको लग रहा है क्लास हुआ है, तुम लोग कोई पढ़े नहीं हो। एंड व्हाट इज द cos, cosine, hyperbolic sine function? omega by x s square minus omega square. Omega by x square minus omega square. Okay, correct. Very good. Very good. तो ठीक है, एक्चुअली मैं अभी क्या करता हूँ कि सारा थ्योरम जो भी है, ठीक है, मैथमेटिक्स के भी तुम लोगों को काम आ जाएगा, और मैं अभी स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीजों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो नाउ दिस इज द टाइम शिफ्टिंग थ्योरम। सो इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म of f of t is fs, then L f of t plus minus a here is equal to e plus minus as fs. Okay, B part here, frequency shifting theorem.
frequency shifting theorem. So again here L E minus plus AT f of t is equal to f s plus minus a. ओके सो ये हम लोग पढ़े शिफ्टिंग थ्योरम, टाइम शिफ्टिंग थ्योरम, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट दो हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अभी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, जो कि हम लोगों को खासकर तो इलेक्ट्रिकल में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऐसे ही पढ़े होगे तुम लोग, जैसे मैथमेटिक्स में भी है। सो व्हाट इज दिस थ्योरम? सो एक्चुअली मैं डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा, इसमें डायरेक्ट जो है थ्योरम को समझना है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? सो इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी is fs and the first derivative of f of t is Laplace transformable, then the initial value of f of t is f of 0 plus is equal to limit t tends to 0, f of t is equal to limit s tends to infinity as f। ये हम लोग सारे अभी जो है ना, जब हम लोग का नेटवर्क एनालिसिस करेंगे ना, तो ये सब सारा चीज का यूज होगा। उस समय तुम लोग को पूरा क्लियर होगा क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है। अभी बस इस सब थ्योरम को समझते हुए जाओ कि क्या है थ्योरम, कौन सा थ्योरम कहाँ है। जब हम लोग नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, जब हम लोग कुछ भी ट्रांजिएंट हो आरसी आरएलसी सर्किट के लिए, तब ये सब जो है कि सारा हम लोग को वहां पर यूज होने वाला है। इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूला को डिटेल बता रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का इनिशियल वैल्यूज थ्योरम। नाउ व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम? फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम? फाइनल वैल्यू थ्योरम final value theorem. What is final value theorem? So simple here again. If a function f of t and its derivative are Laplace transformable, then the final value of f of t is f infinity limit t tends to infinity, f of t is equal to limit s tends to 0, लिमिट चेंज हो जाएगा बस। दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, अब इसे हम लोग जब पोल्स के बारे में, जीरो का कॉन्सेप्ट, इस सब के बारे में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन इस सब में जब पढ़ेंगे ना,
अब इस सब का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का वहां पर यूज होने वाला है 1 by 1 करके। ये सब हम लोगों ने देखा कि जो थ्योरम सब है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक डेफिनेशन को हम लोगों ने समझा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कुछ बेसिक थ्योरम जो है, सिंपल सिंपल सा थ्योरम है, तो एक एक थ्योरम को समझते हुए जाना है, कॉपी में अच्छे से इसको नोट करो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कुछ कुछ विशेष, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एक मिनट, ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। कोई भी फंक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ईएटी, उसका हम लोग यदि फॉर्मूला फॉर्मूला डेरिवेशन, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो सबको आता है ना, इंटीग्रेशन तो सबको आता है। यदि हम लोग उस फॉर्मूला में बैठा देते हैं तो हम लोग का आसानी से निकल जाएगा ना लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वो सब हम बताने का भी जरूरत नहीं है। जैसे कि ठीक है, मैं एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग को ईएटी, तो हम लोग के पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ एटी, ये हम लोग के पास है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ ई, क्या था फॉर्मूला, ई माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, है ना। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, ई माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब कोई भी फंक्शन रहेगा एफ टी, यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे, तो फंक्शन हम लोग का ई ऑफ ए टी है, तो 0 से इंफिनिटी ई माइनस टी एंड ई ऑफ टी, यहाँ पर यदि कॉस रहेगा तो कॉस सेट करेंगे, साइन रहेगा तो साइन, ठीक है। कुछ भी, जो भी ट्रांसफर, जो भी निकालना रहेगा, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो हम लोग सारे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया डी टी, ठीक है। अब बताइए 0 से इंफिनिटी हो गया ये, ठीक है ना, ई, अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एस टी एन डी टी। अब इंटीग्रेशन तो आप पता ही सबको, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ये ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ई एक्स है ये, इसका भी इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई ए माइनस एस टी, ठीक है। और ई एक्स, तो एक्स के जगह में तो एक्स नहीं है, तो ये क्या होगा, डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, सबको पता है ये चीज, ठीक है। और लिमिट पुट कर दे 0 से इंफिनिटी, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग यदि लिमिट को पुट कर देंगे तो क्या हो रहा है, ये 0 इंफिनिटी, तो ये टी के जगह में इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी ई का पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और 0 ई का पावर 0, तो ये 1 हो गया, तो 1, ये टोटल 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस में, माइनस ए माइनस एस, मतलब 1 बाय एस माइनस ए। तो ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ई ए टी का क्या होता है, लैप्लेस ऑफ ई ए टी इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस ए। तो इस तरह से हम लोग सारे डेरिवेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में तुम लोग देखना, तुम लोग का सिलेबस में भी होगा, सारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का साइन थीटा कॉस थीटा सबका डेरिवेशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। ममता कुमारी, ममता, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये क्या मैथमेटिक्स में सब सब समझ चुके हो ना, इंटीग्रेशन में कैसे ये सब सारा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बनाए हो कि नहीं मैथमेटिक्स में? यस सर। तो बनाए हो ना, तो ठीक है, मैं हिंट दे दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? मिलन सागर क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग उस फॉर्मूले को सारा को नोट कर लेते हैं, जो कि हम लोग का डायरेक्ट जो है कि यूज करना रहेगा फॉर्मूला को। तो सारे फॉर्मूला को हम लोग जो है समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट जो भी है जानना जरूरी है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला तो समझ में आ गया, 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई माइनस टी डी टी, ठीक है। तो सपोज दैट मैं 1 बाय 1 करके लिख देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए। तो जैसे कि कोई भी यूनिट स्टेप फंक्शन है, कोई भी यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके। सो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एक मिनट, 1 बाय एस, 1 बाय एस, यूनिट स्टेप फंक्शंस, ठीक है।
अब यूनिट स्टेप फंक्शन में यदि शिफ्टिंग है, मतलब यू टी माइनस टी डिलेट बाई टी है, क्या है ये, डिलेट बाई टी है, डिलेट बाई टी। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म यहां पर लिख देता हूं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका लैपलेस, लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इस समय क्या हो जाएगा, ई माइनस एस टी बाई एस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब वही ई ऑफ ए टी का जो अभी हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया, ये क्या है इसका 1/s-a, ठीक है। अब यदि माइनस रहेगा, यदि यहाँ पर क्या रहेगा, ई ऑफ माइनस ए टी, तो कुछ नहीं, क्या करना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइन फंक्शन, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन फंक्शन, तो इसका क्या होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सबको पता है, ओमेगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस ऑफ ओमेगा टी, अब कॉस ऑफ ओमेगा टी का क्या है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस के केस में क्या होता है, एस ऊपर हो जाता है, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई रैंप फंक्शन है, मतलब टी का पावर एन, और यदि एन इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, एन नंबर, रैंप फंक्शन, कोई रैंप, रैंप के केस में तो इसका क्या होता है, फैक्टोरियल एन एस ऑफ एन प्लस 1, ओके। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, ये यूनिट रैंप हो गया, और डैम्प्ड साइन फंक्शन, मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा, यदि साइन ऑफ ओमेगा टी में, मतलब ई ऑफ माइनस ए टी साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी डैम्प्ड साइन फंक्शन बोलते हैं, जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, मैंने बताया अभी, मैंने ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया था ना, तो देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या था, एस के जगह में यदि ए टी होता तो एस माइनस ए होता है, एस माइनस ए। अब माइनस यहाँ पर ए टी है, तो क्या हो जाएगा, जहां भी एस रहेगा जस्ट रिप्लेस एस विथ एस प्लस ए। अब यहाँ पर यदि ई ए टी होता, सिंपली क्या होता है, ई ए टी, देन वी जस्ट रिप्लेस एस विथ एस माइनस ए, बट हियर दिस ए माइनस ए टी, minus 80, so replace that s plus a, so you know the sine formula, omega by s square plus omega square, just replace here s with s plus a ka whole square and plus omega square, okay, clear. Similarly cos of omega t, so just replace s with s plus a, and again s plus a ka whole square and plus omega square. Similarly for the damped function e of minus at, बात समझ में आ गया होगा, e at यहीं भी लग रहा, मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, रिप्लेस s, बस कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूला जानने के बाद कॉन्सेप्ट यही है, शिफ्ट करना है। तो tn, देन यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n s प्लस a n प्लस 1, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कोई भी डिफरेंशिएशन फंक्शन ले लेते हैं, जैसे डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, तो मैंने बताया ना ये जो थ्योरम, एस ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस। कोई भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन थ्योरम, दैट इज एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस डिवाइडेड बाई एस, ओके। हाइपरबोलिक फंक्शन ले लेते हैं, साइन एच ओमेगा टी, जो हाइपरबोलिक में कुछ नहीं है, सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला में माइनस कर देंगे, एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यदि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी लेते हैं, कोसाइन का हाइपरबोलिक, सो एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
प्रीति, इस फॉर्मूला में कोई डाउट है? No, sir. क्लियर है ना सारा चीज? Yes. ओके। अंकिता, Yes, sir. ये क्लियर है? ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मैं बेसिक बताया अभी सब क्लियर है सारा? Yes, sir. ये जो मैं स्टार्टिंग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, बेसिक थ्योरम क्या है, शिफ्टिंग थ्योरम से लेकर के जो कुछ भी बेसिक कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूला को, इंटीग्रेशंस का कैसे यूज करके कर रहे हैं, तो ये सब में क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हाइपरबोलिक में समझ गए, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी समझ चुके हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम भी समझ चुके हैं, शिफ्टिंग थ्योरम भी समझ चुके हैं। सो ये सब सारा जो है कि हम लोग वन बाय वन करके सारे केस को समझ गए हैं, ठीक है? ये सब बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जानना चाहिए इन सब के लिए, ठीक है ना? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है, जो कि हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला और ये सब का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो ऐसा जैसा कुछ है नहीं, ठीक है? सो एक्चुअली जैसे हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करते हैं वोल्टेज करंट को, तो कैसे हम लोग करेंगे, ये सब हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला को समझ गए। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को जो बेसिकली सर्किट का एनालिसिस में, मतलब सिंपली हम लोग नेटवर्क एलिमेंट में या टाइम डोमेन और एस डोमेन, कोई भी हम लोग के पास बेसिक, हम लोग के पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट पता है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट, यू नो द 3 बेसिक एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो एक्चुअली हम लोग अभी सर्किट में बेसिक बता रहे हैं कि सर्किट में हम लोग के पास वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट बेसिक हम लोग का जो एलिमेंट है, अभी हम लोग समझ रहे हैं वोल्टेज एंड करंट। सो वोल्टेज एंड करंट को टाइम डोमेन और एस डोमेन में कैसे सर्किट पे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो लैप्लेस का पूरा बेसिक था, बेसिक थ्योरम, बेसिक फॉर्मूला जो कि एप्लीकेबल होगा सारे नेटवर्क में और मैथमेटिक्स में भी है। तो ये सब तो जानना जरूरी है, लेकिन हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पे, थोड़ा सा आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पे। सो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड टू सर्किट एनालिसिस, टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पर सिंपल वे में, क्या एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म method to circuit analysis। पहला हम लोग समझ लेते हैं कि रजिस्टर के केस में, रजिस्टर के केस में, ठीक है? सो हम लोग को जानते हैं टाइम डोमेन और एस डोमेन। टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये रजिस्टर है हम लोगों के पास, ये करंट आई ऑफ टी के फंक्शन में, आर नाउ दिस वोल्टेज द टाइम फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो V of t is equal to what? R I of t, सिंपल, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग सिंपल देख रहे हैं टाइम डोमेन एनालिसिस में हम लोग के पास एक रजिस्टर है। सो वोल्टेज एंड करंट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ओके? सो सिंपली हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको एस डोमेन के फॉर्म में, Vs इज इक्वल टू R Is, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज Vs, this is Is, and now this is R, this is R as domain। हम लोग बेसिकली टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन को समझ रहे हैं, ठीक है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हूं, ठीक है? मोहम्मद आबिद हुसैन,
यस सर। सो यहाँ तक कोई डाउट है? अभी तक जो पढ़ा है मैंने, यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? एनी डाउट इस तरह का डाउट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में? नहीं है। नो सर। और इससे पहले जो टू पोर्ट नेटवर्क में मैंने जो सारे क्लासेस कराया था, सारे क्लासेस किए हो? 1 बाय 1 जितने क्लासेस कराया था टू पोर्ट का, सारे टॉपिक क्लियर है ना वहां यस तक का? सर। अच्छा ठीक है। जी सर। पुनीत सेन। यस सर। तो पुनीत, पिछले क्लासेस में जितने भी टू पोर्ट का सारे नेटवर्क जितने भी पढ़ाया था सब सारा क्लियर है? तुम एक दो क्लास में एब्सेंट थे लास्ट। यस सर। तो लास्ट क्लासेस का कवर किए हो कि सब छोड़ दिए अभी? सर थोड़ा बाकी है सर। सुनो, काम पेंडिंग मत करो, ठीक है? काम पेंडिंग मत करो। देखो तुम लोग को भी पता है कि नेटवर्क में मैंने सारे 1 बाय 1 सिलेबस देख के 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया हूँ ना? एक भी कुछ नहीं छोड़ा हूँ, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, सारे में पढ़ा है। यूट्यूब में लेक्चर, उसके लिए प्रूफ भी है कि यूट्यूब में मैंने एक एक लेक्चर को यूट्यूब में डाला हूँ, ठीक है? तो तुम लोग का कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो रेगुलर तुम लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है, सारे चीज को 1 बाय 1 करके सारे को कंप्लीट करना है, ठीक है? अभी जैसे लैपलेस चल रहा है तो लैपलेस को भी अभी कंप्लीट करना है। सो ओके, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म में रजिस्टर के केस में हम लोगों ने क्या समझा, देख लिया। ओके, सो अभी हम लोग जो है कि अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इंडक्टर के केस। सो ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे इंडक्टर के केस में। टाइम डोमेन and S domain. Time domain and S domain. So you know that voltage across the inductor सबको पता है, L di by dt, क्लियर होगा, ठीक है? और यदि हम किसका बात करते हैं, करंट का, करंट इज इक्वल टू 1 बाय L माइनस इंफिनिटी टू T VT एंड DT। ये हम लोगों ने टाइम डोमेन में लिखा हूं। तो अब जो है डिफरेंशिएशन में मैंने बताया ना, डिफरेंशिएशन का थ्योरम, अब देखो अब यूज हो रहा है ना। अब जो मैंने पढ़ाया अभी, तो डी आई वे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने बताया ना अभी, तो अब यूज हो रहा है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि हम लोग आखिर क्या क्या करना है? अब क्लियर हो रहा है कि आखिर जो लैपलेस हम लोग देख रहे हैं तो लैपलेस को कहाँ यूज कर रहे हैं। यदि एस डोमेन में लिखना रहेगा VT, तो VT का एस डोमेन में मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन के लिए एस एल एस ऑफ, यहाँ पर करंट है IS माइनस I जीरो इनिशियल, ठीक है? तो यहाँ पर एक्चुअली लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, I ऑफ T है प्लस माइनस V ऑफ T है, ये इंडक्टर है, तो प्लस माइनस V ऑफ S IS, और ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ना, अब ये इस टाइप से नहीं रहेगा, ये जो होगा इस टाइप से हम लोग लिखेंगे इसको। ये एक एलिमेंट SL नेगेटिव पॉजिटिव L ऑफ I जीरो माइनस, ठीक है? और ये जो IT करंट जो लिखाएगा हम लोग, करंट क्या हो जाएगा, ये करंट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन वाला जो पढ़ा है, इंटीग्रेशन थ्योरम जो, तो 1 बाय L VS बाय S जो थ्योरम है बस उसी को लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, 2-4 बार लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा सब इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के केस में। तो ये हो गया इंडक्टर के केस में। अब कैपेसिटर, ये बेसिक बेसिक याद कर लेना है, तो 2 बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। कैपेसिटर
तो कैपेसिटर के केस में IT VT प्लस माइनस, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में हम लोग यदि लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, करंट क्या हो जाता है, C dVT/dt। सबको पता है ये सब, कैपेसिटर ये सब का रिलेशन, ऐसे मैंने पढ़ाया भी था सब सारा। कैपेसिटर इंडक्टर क्या होता है, 1/c माइनस इन्फिनिटी से t, एंड दिस इज IT and dt. So now what is the S domain? S domain में हम लोग का क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक RLC है। इसको समझने से ही सारे सर्किट का एनालिसिस समझ में आ जाएगा, सारे सर्किट का एनालिसिस समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ दिस इज ZS इज इक्वल टू 1/SC, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर V0 माइनस S मीन्स IT, जो IT का यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का वाला जो थ्योरम बताया था अभी, IS इज इक्वल टू S ऑफ CVS माइनस CV, जस्ट वेट 1 मिनट, ओके हाँ, CV0 माइनस, एंड नाउ VS दैट इज यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए क्या है, IS/CS, क्योंकि C तो नीचे में है ही, CS प्लस V0 माइनस S, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जो रजिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, टाइम डोमेन एस डोमेन एनालिसिस यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबको अच्छा से समझ लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सबको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। सो आज का जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि बेसिक डेफिनेशन लैप्लेस के बारे में, सारे प्रॉपर्टीज, बेसिक जो फॉर्मूला है लैप्लेस का, और उसके बाद जो नेटवर्क में हम लोग का बेसिक एलिमेंट है रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के केस में वोल्टेज एंड करंट का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम डोमेन टू एस डोमेन एनालिसिस। तो ये सबको सारे चीज को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में, और ये हम लोग का जो है कि मॉड्यूल 4 का टॉपिक चल रहा है, मतलब यूनिट 4 हम लोग का चल रहा है, यूनिट 4 का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो ठीक है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना? तो ओके, बाय ऑल ऑफ यू,